رات کی آخری تاریکی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ ویتنام کے دیہات میں زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ ہلکی ہلکی دھند سبز کھیتوں کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، بانس کے گھروں کی چھتوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور دور کہیں مرغ کی آواز خاموش فضا کو چیر دیتی ہے۔ یہاں نہ شور ہے، نہ گاڑیوں کی آواز، نہ موبائل فون کی گھنٹیاں، صرف فطرت کی آوازیں اور وہ سکون جسے آج کی دنیا کھو چکی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی لن ہر روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ مہنگا فون ہے، نہ کسی برانڈ کے کپڑے۔ وہ سیدھا لکڑی کے دروازے کو کھولتی ہے تو سامنے سبز دھان کے کھیت اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کی ماں بانس کے چولہے پر چاول پکا رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کا والد مچھلی پکڑنے کے جال تیار کر رہا ہوتا ہے۔ غربت یہاں موجود ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ چہروں پر پریشانی نہیں، سکون ہے۔ ویتنام کے دیہات کی صبح دنیا کی باقی صبحوں سے مختلف ہے۔ یہاں لوگ جلدی جاگتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کھیت، دریا، بارش، مٹی، یہی ان کی دنیا ہے۔ لن اپنے کندھے پر ٹوکری اٹھاتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ کھیتوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ راستے میں چھوٹے بچے اسکول جانے سے پہلے بطخوں کو دریا کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھی عورتیں سبزیوں کی ٹوکریاں اٹھائے بازار کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں ہر چیز سادہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی سادگی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پر ویتنام کے ان دیہات کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اصل زندگی شاید یہی ہے، ایک ایسی زندگی جہاں کم چیزیں ہیں مگر دل مطمئن ہے، جہاں لوگ تھکے ہوئے ضرور ہوتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور جیسے ہی سورج کی پہلی روشنی دھان کے کھیتوں پر پڑتی ہے، پورا گاؤں سنہری رنگ میں نہا جاتا ہے۔ ایسا منظر جو کسی فلم سے کم نہیں لگتا، مگر یہ فلم نہیں، یہ ویتنام کے دیہات کی حقیقی زندگی ہے۔ ویتنام کی پہچان صرف اس کے خوبصورت مناظر نہیں، بلکہ وہ لاکھوں کسان ہیں جو ہر سال دھان کے کھیتوں میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ یہ کھیت صرف چاول پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان خاندانوں کے خواب بھی سنبھالتے ہیں جو نسلوں سے اسی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لن اور اس کا خاندان صبح کے بعد سیدھا کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ پانی سے بھرے کھیت سورج کی روشنی میں آئینے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ لوگ گھٹنوں تک پانی میں کھڑے ہو کر دھان کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ تیزی سے چلتے ہیں کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر بارش جلدی آ گئی تو پوری فصل خراب ہو سکتی ہے۔ یہ کام جتنا خوبصورت ویڈیوز میں لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی مشکل ہے۔ تیز دھوپ، کیچڑ، تھکن اور مسلسل جھک کر کام کرنا، یہ سب ان کی روزمرہ زندگی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں لوگ شکایت کم کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، گاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر عجیب سا سکون دکھائی دیتا ہے۔ کھیتوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے بانس کے راستے بنے ہوتے ہیں جہاں سے عورتیں کھانا لے کر آتی ہیں۔ دوپہر میں سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر چاول، سبزیاں اور مچھلی کھاتے ہیں۔ کوئی مہنگا کھانا نہیں، مگر سب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ شاید یہی چیز ان کی زندگی کو خاص بناتی ہے۔ ویتنام دنیا کے سب سے بڑے چاول پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے ان کسانوں کی خاموش محنت ہے جنہیں دنیا کم ہی دیکھتی ہے۔ بارش ہو یا دھوپ، وہ ہر دن انہی کھیتوں میں اترتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا دار و مدار اسی فصل پر ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو سنہری دھان ہوا میں لہراتا ہے اور پورا منظر خواب جیسا لگنے لگتا ہے۔ مگر ان خوبصورت مناظر کے پیچھے پسینہ، صبر اور برسوں کی محنت چھپی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویتنام کے دیہات صرف خوبصورت نہیں، بلکہ طاقتور کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ویتنام کے دیہات میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو چیز انسان کو حیران کرتی ہے وہ ہے بانس سے بنے گھر۔ نہ سیمنٹ کی بڑی عمارتیں، نہ شیشے کے محل، صرف بانس، لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنے سادہ گھر جو دیکھنے میں شاید کمزور لگتے ہوں، مگر ان کے اندر ایک مکمل دنیا آباد ہوتی ہے۔ لن کا گھر بھی ایسا ہی ہے، چھوٹا سا بانس کا گھر جس کے نیچے لکڑی کے ستون ہیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ دیواروں کے درمیان سے ٹھنڈی ہوا گزرتی رہتی ہے۔ گرمی کے موسم میں یہی گھر قدرتی ایئر کنڈیشنر بن جاتا ہے۔ گھر کے اندر بہت کم چیزیں ہیں، ایک پرانا پنکھا، لکڑی کی میز، چند برتن اور سونے کے لیے پتلی چٹائیاں۔ مگر حیرت یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ خود کو غریب محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کے کئی امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں،
सुकून। शाम के वक्त पूरा खानदान एक साथ बैठता है। बिजली कभी होती है, कभी नहीं। बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेलने के बजाय बाहर खेलते हैं। औरतें खाना बनाते हुए बातें करती हैं और बूढ़े लोग माजी की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ आहिस्ता चलता हो। बारिश के मौसम में बांस की छत पर गिरती बारिश की आवाज पूरे घर को एक अजीब सुकून देती है। बाहर मिट्टी की खुशबू फैल जाती है, जबकि अंदर चूल्हे पर सूप पक रहा होता है। ये लम्हे सादा जरूर हैं, मगर उन्हीं लम्हों में असल खुशी छुपी हुई है। दुनिया आज जदीद शहरों के पीछे भाग रही है, मगर वियतनाम के ये बांस के घर लोगों को याद दिलाते हैं कि खुशी सिर्फ बड़ी गाड़ियों और महंगे घरों में नहीं होती। कभी कभी खुशी सिर्फ एक पुरसुकून रात, खानदान के साथ खाने और बारिश की आवाज में भी मिल जाती है। वियतनाम के देहात की सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो है वहाँ के रिवायती खाने। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि ये खानदान, मोहब्बत और रिवायत की अलामत होता है। लन की माँ हर सुबह ताज़ा सब्जियां बाग से तोड़ती है। कुछ ही देर बाद बांस के चूल्हे पर शूरबा पकना शुरू हो जाता है। धुएं की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ताज़ा मछली, चावल, सब्जियां और जुड़ी बोटियां, यही उनके खानों की असल ताकत है। देहात में ज़्यादातर चीज़ें बाजार से नहीं खरीदी जाती। लोग खुद सब्जियां उगाते हैं, खुद मछली पकड़ते हैं और खुद चावल तैयार करते हैं। शायद यही वजह है कि उनके खानों में कुदरती जायका होता है। खाने के वक्त सब ज़मीन पर बैठते हैं। एक बड़ी प्लेट में चावल रखे जाते हैं और हर कोई साथ खाता है। यहाँ अकेले खाना खाना अजीब समझा जाता है। खाने के दौरान कहकहे, बातें और हंसी पूरे माहौल को जिंदा बना देती है। वियतनाम के देहात में स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर है। छोटे बाजारों में औरतें गरम नूडल्स, सूप और गरल की हुई मछली बेचती नजर आती हैं। बारिश हो या धूप, ये बाजार हमेशा जिंदगी से भरे रहते हैं। दुनिया भर के लोग आज वियतनामी फूड वीडियोस क्यों देखते हैं? क्योंकि उन खानों में सिर्फ जायका नहीं, एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी, मेहनत और खानदान से जुड़ी हुई है। लन सिर्फ एक आम देहाती लड़की नहीं, बल्कि वियतनाम के लाखों नौजवानों की नुमाइंदा है, जो सादा जिंदगी के बावजूद बड़े ख्वाब रखते हैं। उसकी सुबह खेतों से शुरू होती है और रात घर के कामों पर खत्म, मगर उसके चेहरे पर कभी थकन दिखाई नहीं देती। वो अपनी माँ के साथ सब्जियां उगाती है, पानी भरती है, बतखों को दरिया की तरफ ले जाती है और शाम में खाना तैयार करती है। मगर उन सब के बावजूद वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। यही वियतनाम के देहात की सबसे बड़ी हकीकत है। गुर्बत के बावजूद उम्मीद जिंदा रहती है। गांव की लड़कियां अक्सर कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, मगर हैरत की बात यह है कि वो शिकायत नहीं करती। उनकी जिंदगी सख्त जरूर है, मगर उनके दिल मजबूत है। बारिश हो, धूप हो या सैलाब, वो हर हाल में अपने खानदान का साथ देती हैं। शाम के वक्त जब लन दरिया के किनारे बैठती है तो दूर पहाड़ों के पीछे सूरज गुरूब हो रहा होता है। वो खामोशी से पानी को देखती है, जैसे मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हो। शायद यही लम्हे उसे ताकत देते हैं। वियतनाम की देहाती लड़कियों की वीडियोस दुनिया भर में वायरल होने की वजह सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी सादगी और मेहनत है। वो मसनूई जिंदगी से दूर है। उनके चेहरे पर मेकअप कम, मगर हकीकत ज्यादा होती है। दुनिया के बड़े शहरों में लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जबकि ये लड़कियां दिन भर सख्त मेहनत के बावजूद मुस्कुराती रहती हैं। शायद इसलिए लोग उनकी ज़िंदगी को देखकर मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि खुशी का ताल्लुक पैसों से कम और दिल के सुकून से ज़्यादा होता है। वियतनाम में बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। जब मानसून शुरू होता है तो पूरे देहात का मंजर बदल जाता है। आसमान सियाह हो जाता है, तेज़ हवाएं चलती हैं और कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश हर चीज़ को ढांप लेती है। बांस के घरों की छतों पर बारिश की आवाज़ मुसलसल गूंजती रहती है। रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं, खेत पानी से भर जाते हैं और दरिया खतरनाक हद तक ऊपर आ जाता है। मगर इस सब के बावजूद जिंदगी नहीं रुकती। लन का खानदान भी बारिश में अपना काम जारी रखता है। उसका वालिद जाल लेकर दरिया की तरफ जाता है, क्योंकि मछली पकड़ना ज़रूरी है। उसकी माँ घर के अंदर लकड़ी बचाने की कोशिश करती है ताकि चूल्हा जलता रहे। कई बार बारिश इतनी शदीद होती है कि पूरा गांव सैलाब में घिर जाता है। लोग अपने जानवरों को बचाने के लिए रात भर जागते हैं। बच्चे खौफजदा होते हैं, मगर फिर भी सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बारिश के बाद पूरा माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। दरख्त धुल जाते हैं, खेत चमकने लगते हैं और हवा ठंडी हो जाती है। यही वियतनाम की जिंदगी है,
मुश्किल भी मगर खूबसूरत भी। सोशल मीडिया पर बारिश में वियतनामी गांव की वीडियोस इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि वो हकीकत दिखाती हैं। ना कोई फिल्टर, ना मसनूई सीन, सिर्फ एक ऐसी जिंदगी जो फितरत के साथ जुड़ी हुई है। वियतनाम के देहात का बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि पूरे गांव का दिल होता है। सुबह सवेरे ही लोग अपनी टोकरियां उठाए बाजार पहुंचना शुरू हो जाते हैं। कहीं ताज़ा मछली रखी होती है, कहीं सब्जियां, कहीं हाथ से बने बांस के सामान। लन भी अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। रास्ते में साइकिलों की कतारें, छोटे पुल और पानी के किनारे चलते लोग पूरे मंजर को फिल्म जैसा बना देते हैं। बाजार में शोर जरूर होता है, मगर ये शोर सुकून देता है। औरतें हंसते हुए सौदा बेच रही होती हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं और बूढ़े लोग चाय पीते हुए गपशप कर रहे होते हैं। यहाँ महंगे माल्स नहीं, मगर हर चीज में जिंदगी महसूस होती है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर किसी के पास पैसे कम हो तो भी उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता। वियतनाम के तैरते बाजार दुनिया भर में मशहूर है। कश्तियों पर सब्जियां, फल और खाने बेचे जाते हैं। पानी के बीच ये बाजार देखने में ख्वाब की तरह लगते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोग वियतनाम के बाजारों की वीडियोस बार बार देखते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ असली लगती है। मसनूई रोशनियों के बगैर भी वो जगह जिंदा महसूस होती है। वियतनाम के देहात में दरिया और समंदर जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। हजारों खानदानों का रिस्क मछली पकड़ने से जुड़ा हुआ है। सुबह अंधेरे में ही कश्तियों के इंजन चलने लगते हैं और माहीगीर पानी की तरफ रवाना हो जाते हैं। लिन का वालिद भी उन्हीं लोगों में शामिल है। उसके हाथ सख्त हो चुके हैं क्योंकि बरसों से वो जाल फेंक रहा है। दरिया पुरसुकून नजर आता है, मगर हकीकत में ये जिंदगी बहुत खतरनाक है। कभी तूफान, कभी तेज लहरें, कभी खाली जाल। हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। मगर अगर मछली ना पकड़ी जाए तो खानदान भूखा रह सकता है। शाम के वक्त जब कश्तियां वापस आती हैं तो पूरा गांव किनारे पर जमा हो जाता है। बच्चे खुशी से दौड़ते हैं, जबकि औरतें मछली साफ करने में मसरूफ हो जाती हैं। ये मनाजिर दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि उनमें हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां इंसान आज भी फितरत के रहमो करम पर जिंदा है। दुनिया जितनी जदीद होती जा रही है, इंसान उतना ही बेसुकून होता जा रहा है। बड़े शहर, ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, सब कुछ होने के बावजूद लोग खुश नहीं। मगर वियतनाम के उन छोटे देहात में जहां लोग बांस के घरों में रहते हैं, हैरत अंगेज सुकून मौजूद है। लिन रात के वक्त अपने घर के बाहर बैठी आसमान को देख रही होती है। दूर कहीं मेंढकों की आवाज आ रही होती है। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों को हिला रही होती है और पूरा गांव खामोशी में डूबा होता है। इसके पास शायद ज्यादा पैसे नहीं, मगर उसके पास खानदान है, फितरत है और एक ऐसी जिंदगी है जो हकीकत से भरी हुई है। शायद यही वजह है कि वियतनाम के देहात की वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, क्योंकि लोग सिर्फ खूबसूरती नहीं देख रहे, बल्कि वो सुकून तलाश कर रहे हैं जो उनकी अपनी जिंदगियों से गायब हो चुका है। और यही वियतनाम के देहात की सबसे बड़ी ताकत है, सादगी में छुपी खुशी।